जो अम्बाला में ये हालात हुए, आप जैसे आपकी उम्र इतनी है और आपको देख के युवा भी चार्ज हुए, युवा भी आपको फॉलो करते हैं, तो ये जो प्रकरण हुआ पूरा अम्बाला में, जो ये मौजूदा हालात बने, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? जे किसी ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ, ਚੌਥੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸ कर दी थी। जगदीश जी, मेरा सवाल यही है बीच में कि अगर आपकी बात मतलब सलाह सुनी जा रही थी, आपसे बातचीत हो रही थी और आपकी बात कहीं ना कहीं आप खुद ही कह रहे हैं कि मानी भी जा रही थी, तो नौबत इतनी क्यों बिगड़ी कि आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए? हमने जीटी रोड जाम नहीं करना था, यदि पहले दिन आप पर्चा दर्ज करते। बीती 13 अगस्त को अम्बाला में जो प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े, इन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक जत्थेदार जगदीश सिंह जिंडा जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है 7 न्यूज़ में आपका। जो अम्बाला में ये हालात हुए, आप जैसे आपकी उम्र इतनी है और आपको देख के युवा भी चार्ज हुए, युवा भी आपको फॉलो करते हैं, तो ये जो प्रकरण हुआ पूरा अम्बाला में, जो ये मौजूदा हालात बने, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह जी जो कुछ भी होया ये बहुत ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਨ ਲਾਏ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ। 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਭਜਾਈ ਜਿੱਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ, ਚੌਥੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। 4 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਗੜੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਸ ਗਈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਵਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫਿਸ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ देंगे। मतलब उनको छोड़ने के लिए तैयार थे वो? हाँ, उसको छोड़ने के भी लिए तैयार हो गए। 2 लड़के जो पकड़े थे और जो मंड के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए, और 2 घंटे का टाइम मांगा। उस टाइम 3 बजे हुए थे, मैं यहाँ पर 5 बजे तक बैठा रहा, 5 बजे के बाद 7 बजे तक बैठा रहा, और मैं देखता रहा भी FIR उनके विरुद्ध दर्ज हुई कि नहीं हुई। 7 बजे तक उनके कोई FIR दर्ज नहीं हुई। फिर मैंने अपने मेंबर से कहा भी आप कॉल दे दो कि आज 10 तारीख है, 13 तारीख को कॉल दे दो। 13 तारीख तक यदि प्रशासन ने उसके विरुद्ध 307 का पर्चा दर्ज नहीं किया तो हम फिर संगत इकट्ठी होगी और संगत आगे का जो रणनीति तैयार करेगी। 4 दिन तक उस पर जब पर्चा दर्ज नहीं हुआ, 13 तारीख को संगत यहाँ हज़ारों की तादाद में इकट्ठी हुई, और संगत ने ये फैसला किया कि अब हमें GT रोड जाम करना चाहिए। ऐसे ये प्रशासन मानेगा नहीं। जैसे ही हमने GT रोड जाम किया 2-2 बजे के करीब, तभी मेरे पास SP साहब, IG साहब वो मुझे अप्रोच करने लगे, मेरे साथ मीटिंग करने लगे कि आपकी डिमांड क्या है। मैं पहली हमारी डिमांड ये है कि दोनों बाप बेटे पर 307 का पर्चा दर्ज करो। वो कहते हैं ठीक है, हम 1 घंटे में पर्चा दर्ज करते हैं। यहाँ मैं सवाल उठाता हूँ, 4 दिन तक तो आप पर्चा दर्ज नहीं किया, आपने वादा खिलाफी की, और फिर भी हम आपके ऊपर फिर यकीन कर रहे हैं भाई कोई बात नहीं। उस टाइम क्या हो गया अभी आप 1 घंटे में पर्चा तैयार कर, इसका मतलब है कि GT रोड जाम करवाने में आपका रोल रहा है। हमने GT रोड जाम नहीं करना था। यदि पहले दिन आप पर्चा दर्ज करते थे, 13 तारीख से पहले ही पर्चा दर्ज कर, GT रोड जाम कराने का कारण प्रशासन की नलायकी रही और हमें हल्के में लिया गया सिख संगत को। और जब GT रोड जाम हो गया तो तब 2 घंटे के अंदर अंदर SP साहब और IG साहब ने मेरे हाथ में वो 307 का पर्चा थमा दिया। जब 307 का पर्चा आ गया तो SP साहब मुझे कहने लगे कि अब आप धरना समाप्त कर दो। मैंने कहा भी मैंने धरना समाप्त करने के लिए नहीं कहा था, मैंने FIR कॉपी मंगाई थी, आपने कॉपी ला दी है, मैं संगत से जाके कॉपी भी दिखाऊंगा, और आप जो मेरे साथ वायदा कर रहे हो कि 4 दिन के अंदर अंदर जो नौजवान पकड़े हैं उनको हम रिहा भी कर देंगे। और कुछ दिन बाद 10-15 दिन, क्योंकि वो 15 दिन के लिए जुडिशल में चले गए हैं प्रोटेस्ट के लिए, वो जुडिशल रिमांड में चले गए हैं 15 दिन के लिए, तो उसके जो कानूनी प्रक्रिया होगी हम वो उनको बाहर निकाल देंगे। जमानत में आपकी हम इमदाद कर देंगे। SP साहब कहने लगे, और जैसे कानूनी प्रक्रिया खत्म होगी फिर हम पर्चा भी कैंसिल कर देंगे। मैं सारी बातें SP साहब के सामने, संगत के सामने रखी, मगर हमारी संगत के नौजवान तो जोश में थे, उनको अगली कहानी का पता नहीं था भी आगे होगा क्या। वो कहने लगे प्रधान जी हम तो बच्चे ले के ही आज जाएंगे। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, इतनी जल्दी, अब रात के 8 बज चुके हैं, आप ऐसा करो, इतनी जल्दी बच्चे नहीं आएंगे, हमें प्रशासन की बात मान लेनी चाहिए और इनको टाइम दे देना चाहिए। जब बच्चे जो संगत अकड़ गई तो फिर मैंने अपने सभी मेंबरों को बुलाया। 8:13 में मेरे पास सीएम साहब का फ़ोन आ गया सीएम हाउस से कि हम जिंदा साहब 2 दिन का टाइम मांगते हैं, आप यहाँ GT रोड खाली कर दो, 2 दिन में आपके बच्चे बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानत करवा देंगे, और अगले 3-4 दिन में हम कानूनी प्रोसेस पूरा करके ये पर्चा भी कैंसिल कर देंगे। हमने सीएम साहब की इज्जत का ध्यान रखा, और उसी टाइम हम मीटिंग में बैठे थे, हमने फैसला कर लिया भी सीएम साहब का फ़ोन आ गया है और ये पब्लिक को जाके SP साहब
और आईजी साहब और मैं तीनों जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे भी सीएम साहब के आश्वासन पर आज हम धरना ख़त्म कर रहे हैं और 2 दिन बाद हमारे बच्चे आ जाएंगे तो हम धरना समाप्त करने का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जगदीश जी, मेरा सवाल यही है बीच में कि अगर आपकी बात मतलब सलाह सुनी जा रही थी, आपसे बातचीत हो रही थी और आपकी बात कहीं ना कहीं आप खुद ही कह रहे हैं कि मानी भी जा रही थी, तो नौबत इतनी क्यों बिगड़ी कि आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। जैसे ही हम वो उठे तो मैं उठने से पहले मैंने अपने जो प्रशासन से दोबारा बात कर रहे थे, एक गुरवीर सिंह हमारा मेंबर है, गुरतेज सिंह अम्बाड़े के दोनों मेंबर हैं, वो उनको मैंने कहा भी एसपी साहब को बुलाओ, आईजी साहब को बुलाओ, तो आप सीएम साहब के बात संगत के आगे रख के धरना समाप्त कर देते हैं। 5 मिनट वो फ़ोन करते रहे तो एसपी साहब आईजी साहब कहते हैं हम मीटिंग बैठे हैं, आते हैं। वो फिर जहाँ मीटिंग चल रही थी उनके पास गए और बाहर जब निकले आईजी साहब उस टाइम प्रेस करने के लिए तैयार थे, मगर एकदम फ़ोन पता नहीं कहाँ से आया। तो उसी टाइम आईजी साहब ने मेरी तरफ आने की बजाय वहाँ पर हुक्म कर दिया भाई लाठी चार्ज कर दो। उनको किसका फ़ोन आया? सीएम साहब को देखो फ़ोन करते नहीं, क्योंकि सीएम साहब के मैं स्वभाव से अच्छी तरह जानते, वो सज्जन पुरुष हैं, हमेशा हंस के बात करते हैं, वो मेरी इज्जत बहुत करते हैं, मैं उनकी इज्जत उनके स्वभाव की बहुत करते हैं। वो ऐसा फैसला तुरंत नहीं ले सकते, मुझे पूरा आश्वासन है। उनके पास आईजी साहब के किसका फ़ोन आया, किसने ये डायरेक्शन दी भी आप इनके ऊपर अटैक कर दो? मैंने जब पीछे तैयार हो गया था तो मैंने देखा, मैं भी बैठा ही था, तो मेरे पास भाग के नौजवान आए, भाई प्रधान जी उधर से तो गोले फेंकने वो शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अथरू गैस के गोले, डांगे, जो भी उनके पास थे साधन थे धरना उठाने के लिए, वो सारे। उसमें सबसे बड़ी बात है जो हमारा एक नौजवान सिख पानी पिला रहा था, पुलिस को गर्मी बहुत, पानी भी पिला रहा था, पुलिस को भी पिला रहा था, तो संगत को भी पिला रहा था, उसकी बाजू तोड़ी गई, डंडा मार के उसको भी नहीं बख्शा गया। एक हमारा बुजुर्ग जो पाठ कर रहा था वहाँ पे, आराम से बैठा हुआ था, निहंग सिंह, उसके पुलिस ने उसको भी नहीं बख्शा और उसके भी सिर पे भी डंडा मारता, सारा सिर फट गया, उसकी भी टांग तोड़ी गई, बाजू भी तोड़ गए, सारा तोड़ के उसको फेंक दिया गया। ऐसी बर्बरतापूर्ण हमला करना और फिर हमारे ऊपर यह कह रहा है कि पहले आपने अटैक किया है। हम आज भी आपके माध्यम कहते हैं कि यदि हमने, सारी वीडियो मेरे पास है, यदि हमारे नौजवानों ने अटैक किया हो, हमारे नौजवानों ने जब उन्होंने अटैक किया तो एक निहंग सिंह ने, 2 निहंग सिंह ने उनको पुलिस वालों को रोकने की, जो जहाँ पर 100 बुजुर्ग बैठे हुए थे मेरी उम्र के, भाई पुलिस इनके ऊपर अटैक ना करे, वो आगे अड़ के दोनों खड़े हो गए और गटका खेलने लगे जो निहंग सिंह खेलते हैं, ताकि इनके ऊपर अटैक ना हो। और 5-10 मिनट तक वो गटका खेलते रखे और 100-200 पुलिस वाले उनको रोक के रखा जिनके हाथ में डांगों थे, नहीं तो जो बुजुर्गों के ऊपर ऐसी डांग बरसाई जानी थी, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाता। जब बुजुर्ग उठ गए तो वो निहंग सिंह एक तरफ हो गए और उनको भी इन्होंने हाईलाइट किया भी ये देखो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब जब हो गया ये सारा, आंसू गैस शुरू हो गई, तो फिर वो खाली होना ही था। अब तक ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई वो ऑर्डर किसने किए और क्यों करिए, जब हम सारी बात मान ले के ये तैयार थे, फिर ऐसी बर्बरतापूर्ण। और एक पुलिस ने सबसे बड़ी गलती की, वो अंग्रेज़ों के उस में पीछे छोड़ गए। प्रदर्शनकारी जब अंग्रेज़ आज़ाद करवाने के लिए हमारे प्रदर्शनकारी करते थे, पहले वो अनाउंसमेंट करते थे 3 बार, भी जगह खाली कर दो, प्रदर्शन यहाँ से चले जाओ, नहीं हम लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे। 3 बार अनाउंसमेंट करने के बाद तब गोली और लाठी चलती थी। इन्होंने मुझे एक भी बताओ भी एक बार भी कहीं अनाउंसमेंट किया है भाई हमें अब मजबूर हो चुके हैं, आप या जगह खाली कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर लाठी बरसाएंगे या आंसू गैस छोड़ेंगे या गोलियां बरसाएंगे। नहीं की इन्होंने अनाउंसमेंट, इन्होंने वहाँ पर कानून की भी उल्लंघना की और उल्टा जाके एसपी सीएम साहब को ये भड़काया जा रहा है भी प्रदर्शनकारियों ने हमारे ऊपर ईंट पत्थर भगाया। हमारे पास सारी वीडियो है, हम अपनी समेत प्रूफ सीएम साहब को दिखा भी सकते हैं। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, जितनी गलती हुई प्रशासन की तरफ से गलती हुई, हम हर बात मानने के लिए तैयार थे, जो उन्होंने शर्त रखी वो भी मानने के लिए तैयार थे, पर पता नहीं इनको क्या जल्दी थी। 8:13 और 8:18, 5 मिनट की बात थी, 5 मिनट के अंदर अंदर सारा खेल के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक वर्ल्ड की खबर बन गई। और वर्ल्ड ने जो ये तमाशा देखा, तो मैं तो समझता हूँ कि या तो सिखों को बर्दाश्त ही नहीं किया जा रहा, जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना खून बहाया है। हमें कुछ सहन देना चाहिए था, कानून में रहना चाहिए था। हम तो शरबत का भला मांगने वाले लोग हैं। देखो हमारे आदमी का, पुलिस को भी पानी पिलाया इतनी गर्मी में, तड़फ रहे थे पुलिस वाले,
उसका धन्यवाद भी कर रहे थे और फिर उसी को डांग मार के उसकी बाजू तोड़ दी गई। ये कहाँ का न्याय? आगे की क्या डिमांड है आपकी, आगे की क्या योजना हाँ है? जी, आगे की देखो हमारी 3 ही डिमांड है। देखो मेरी सारी किसान यूनियन से, सारी जथेबंदियाँ जितनी हरियाणा की किसान यूनियन, सभी से मेरी बातचीत हो गई। न्यांग सिंह जथेबंदियों से बात होगी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी मेंबरों से बात होगी। हम इसका हल निकालना चाहते हैं और हम जो कुछ सीएम साहब के चहेते हैं वो हमारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तोड़ने पे लगे हुए। इस वजह से मैं सीएम साहब को कहूँगा कि हमारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दो फाड़ ना करो। जो बात करनी है आप प्रधान से करो। आप किसी मेंबर को फ़ोन कर देते हो, 5-4 मेंबर लेके वो आपके पास चला जाता है, 5-4 मेंबर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और ये जो हो रहा है इसमें दुफाड़ करने वाली बात है, इसमें बखेड़ा बड़ा लंबा खड़ा हो जाएगा। देखो आप जब भी इससे कोई बात होती है तो सीएम साहब का जो एसडी मेरे पास बात करता है, भी जिंदा साहब ऐसे करना है, तो मैं उनकी जो जायज़ बात है हर मानने के लिए तैयार हूँ। पर अब हमारे साथ ये राजनीति क्यों हो रही? अभी आपने एक प्रेस वार्ता भी करी, उसमें आपने एक ये पत्र का भी जिक्र किया, ये किस तरह का पत्र और कहाँ से आया ये? हाँ जी, देखो जब किसान यूनियन भी सारी तैयार हैं, भाई समझौता होना चाहिए, न्यांग सिंह जथेबंदियाँ भी तैयार हैं, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी मेंबर तैयार हैं, तो इसी बीच में मुझे कल एक ये पत्र आया है मंड की तरफ से और उन्होंने मेरठ में कोई उनका सहयोगी है उसके पास वो गए हैं और उनके पास उन्होंने पत्र भेजा कि हम प्रधान जी को बेनती करते हैं कि मंड साहब जो गलती की है वो माफ़ी मांगने के लिए संगत को तैयार हैं और मैं मंड ने कहा कि ना मैं कोई कार्रवाई करूंगा और ना मेरे ऊपर जो कार्रवाई है अपन जो भी हुआ वो गलत हुआ, इसकी मैं सॉरी फील करता हूं और मैं रिटर्न में भी माफ़ी मांग रहा हूं और संगत कहेगी तो संगत में माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। हम तो उस पर भी विचार कर रहे हैं और हमारी जो मांग है जो 25 तारीख का हमने कॉल दी है वो न्याय अपना लेने के लिए कॉल रखी है। उसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक मांग तो ये है कि हमारे 8 तारीख को जो पर्चे हुए वो कैंसिल हों, जो 14 तारीख को पर्चे हुए हैं वो सारे कैंसिल हों और तीसरा वो है कि मंड को 360 की धारा में गिरफ्तार किया जाए। तो जब ये हमारे पास कल का पत्र आया तो हम फिर इस पर भी विचार कर रहे हैं कि ये 25 तारीख को उसको माफ़ी देनी है नहीं देनी। यदि वो संगठन के आके माफ़ी मांगता है हम उस पर भी गंभीरतापूर्ण विचार कर रहे हैं, बड़ी सहमति से विचार कर रहे हैं। अब तो ये बात है सरकार की कि सरकार हमें कब बुलाती है और सौहार्दपूर्ण हमारा कब हल करती है, कानूनी तौर पर कैसे इसका हल करना है वो सीएम साहब के हाथ में है कि सीएम साहब आगे आएँ और हरियाणा में शांति भंग ना हो और इस बात को जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इसको हल करने की कोशिश करें ताकि ये बात आगे ना बढ़े। और फिर को सभी राजनीतिक पार्टियों से मैंने अपील की है, मैंने अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब से भी अपील की है कि आप भी, उन्होंने भी पोस्ट डाली है कि सरकार को आगे आना चाहिए और बैठ के बातचीत का हल करना चाहिए। उन्होंने बड़ी सौहार्दपूर्ण बात की है और हमारी हरियाणा कमेटी और जो किसान यूनियन है वो भी इसके लिए तत्पर हैं कि बैठ के सभी के साथ एक साझी मीटिंग हो जाए और बैठ के हल निकाला जाए और जो जिनको चोटें आई हैं उनका भी पक्ष रखा जाए और जिनकी गलती है उनको भी किया जाए। और यदि मैं कहता हूं कि इस बात को ख़त्म करना है तो फिर ईगो अपनी छोड़नी चाहिए, प्रशासन को भी ईगो छोड़नी चाहिए, हर पक्ष को ईगो छोड़नी चाहिए। किसान यूनियन भी अपनी ईगो छोड़ने के लिए तैयार है, हरियाणा कमेटी भी ईगो छोड़ने के लिए तैयार है। अब सरकार भी अपनी ईगो नहीं रखनी चाहिए और ना ही प्रशासन को ईगो रखनी चाहिए। शांति तभी होगी जब सारे ईगो अपनी छोड़ के एक मंच पे बैठ के इसका समाधान रल मिल के निकालें। आपने सभी राज्यों से भी अपील करी है कि एकजुट होने के लिए, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों से आपने कहा एकजुट हो 25 तारीख को, ऐसे हालात दोबारा ना हो उसके लिए क्या प्रबंध रहेगा? नहीं ऐसा देखो वो तो हमने 25 तारीख का तो इसलिए कॉल की है भी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हों लोग और सरकार के ऊपर दबाव बने और जो हमारी मांगे हैं वो शांतिपूर्ण मांगी जो वो शांतिपूर्वक हमारा एक रोष प्रदर्शन है भी हमें न्याय नहीं मिल रहा, उसके लिए मैंने सभी राज्यों से अपील की है और अकाल तख्त के जथेदार को भी अपील की है। और उसने के लिए 25 तारीख की तैयारी के लिए मैंने अपना 8 दिन का प्रोग्राम बना लिया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पंचकुला पहले दिन जाऊंगा, कल को जाऊंगा यमुनानगर जाऊंगा, उसके बाद कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांवा,
और सरसा और फतेहाबाद सारे ज़िलों में, हर रोड में 2 ज़िलों में जाके प्रेस पीसी करा करूँगा और जनता से अपील करूँगा भाई अपना न्याय लेने के लिए आप 25 तारीख को इकट्ठे हो। शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो जत्थेदार जगदीश जिंडा जी ने हमसे अपने पूरे विचार साझा की, क्या कुछ पूरा प्रक्रम था वो बताया कि गलती कहाँ तक थी। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा। 25 तारीख को फैसला तो नहीं कह सकते, लेकिन 25 तारीख को ही क्लियर होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के आता है और क्या कुछ फैसला होता है। बने रहिए खबरों के लिए 10 न्यूज़ हरियाणा के साथ।